السلام علیکم. آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل بھی دن کا آغاز میں نے اس ٹرین سانحے سے کیا اور آج بھی اسی غمناک کہانی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہت سی جانیں ضائع ہوئیں، بہت سے لوگ ہاسٹیج بنے، یرغمال بنے. دہشت اور پینک کا ایک طوفان ہے جس نے ملک کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ اعزاز مجھے کو حاصل ہوا کہ یہ سٹوری کل میں نے بریک کی تھی. پاکستان میں سب سے پہلے اگر کسی نے لائیو ٹرانسمیشن کر کے آپ تک یہ اطلاعات پہنچائیں تو وہ خاکسار تھا. حالانکہ رپورٹنگ کا کام عرصہ ہوا میں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ بین الاقوامی میڈیا اپنی مرضی سے رنگ برنگی اطلاعات دیتا چلا جا رہا تھا. میں اس معاملے کی انیٹمی کو ڈسکس کروں گا، اس کی آفٹر میتھ کو ڈسکس کروں گا، اس کے اندر جو مضمرات ہیں انہیں ڈسکس کروں گا، اور جن چیزوں کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں بائی دا ڈے ان کا تذکرہ کروں گا. میں ان خوش فہمیوں اور ہٹ دھرمیوں کا تذکرہ کروں گا جس کا شکار ہماری حکومت ہے. چنانچہ ہیڈ لائنز کی شکل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اپنی طرز کا ایک نادر واقعہ ہے. آج تک کبھی اس قدر میسو سکیل پر ہاسٹیج سچویشن پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی. یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ اس کی مثال گزشتہ 78 سال میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولے گی کہ ہمارے ہاں جہاز تو اغوا ہوتے تھے، بسیں تو اغوا ہوتی تھیں، ٹیکسیاں، رکشے، ویگنیں تو اغوا ہوتی تھیں، پلیئرز کی، کرکٹرز کی کوچز تو اغوا ہوتی تھیں، لیکن اب ٹرینیں بھی اغوا ہونے لگی ہیں. ایک فلمی سچویشن لگتی ہے. وہ ایک فلم ہے انڈر سیج اسٹیون سیگل کی، مجھے وہ یاد آ گئی کہ بالکل وہی کیفیت ہے. چشم تصور نے یہ تک دیکھا کہ وہ کس طرح اندر داخل ہوئے ہوں گے، کس طرح انہوں نے سب کو خبردار کیا ہوگا، کس طرح انہوں نے حکم عدولی کرنے والوں کو تہ تیغ کیا ہوگا، یعنی گولیاں ماری ہوں گی. میں کوشش کروں گا چیدہ چیدہ پوائنٹس ڈسکس کروں تاکہ بے جا طوالت اوائڈ کی جا سکے. اگلی ہیڈنگ پہ آئیں، مہارت. آپ نے غور کیا ہے کہ اس پورے مشن کی، اس پوری ایڈونچر، اس پوری واردات کی پلاننگ باقاعدہ ملٹری پلاننگ لگ رہی ہے. یہ کسی چھوٹے موٹے علیحدگی پسند، عسکریت پسند، شر پسند گروہ نے نہیں کی. اس کے پیچھے باقاعدہ ملٹری پلاننگ، ملٹری اسٹریٹجی ہے. یعنی پورے علاقے کا ٹرین ان کی فنگر ٹپس پہ تھا. انہوں نے کس قدر شاندار سپاٹ کی سلیکشن کی. اس طرح کی واردات کے لیے یہ آئیڈیل سائٹ تھی، اس لیے کہ اس کا نہ صرف چپا چپا میں نے دیکھ رکھا ہے، اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنا رکھی ہیں، اور اس کا تذکرہ میں نے گزشتہ روز لائیو ٹرانسمیشن میں بھی کیا تھا. یہ خواتین و حضرات ٹنلز کا ایک سلسلہ ہے جس میں انتہائی ماہرانہ طریقے سے ایک ایسی ٹنل سلیکٹ کی گئی، ٹنل نمبر 8 یعنی سرنگ نمبر 8، کہ جس کا ہیڈ اور ٹیل سرنگ کے اندر ہے، اور گاڑی روک دی گئی. گاڑی جس بلاسٹ سے روکی گئی وہ بھی انتہائی ماہرانہ طریقے سے ہوا تاکہ نہ تو وہ آگے سے رک سکے اور نہ پیچھے رک سکے. پھر ان کی مہارت دیکھیے کہ انہیں پتا تھا کہ اس کے اندر سیکیورٹی سروسز کے لوگ ود فیملیز موو کر رہے ہیں. کتنی بڑی تعداد ہے، کتنے لوگ ہیں، وہ سب انہیں پتا تھا. پھر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ٹاپ پہ ایف سی کے اہلکار پورے علاقے کی سرویلنس کرتے ہیں. ان کو کس مہارت سے نیوٹرلائز کیا گیا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں، there was nobody، اس لیے کہ پہلے سے ہی معاملہ کر لیا گیا تھا. پھر یہ ٹنل خواتین و حضرات اس قدر نیرو ہے کہ آپ چاہیں بھی تو وہاں پر آپریشن نہیں کر سکتے. ٹرین سے اتر کر آپ کھلے عام چل پھر نہیں سکتے. وہ بمشکل اتنی چوڑی ہے کہ ٹرین گزر سکے. محسوس یہی ہوتا ہے کہ ذرا لیفٹ رائٹ اس نے جرک کیا تو وہ دیواروں کو ٹچ کرے گی. تو ایسی صورتحال میں آپ کیسا آپریشن کس حد تک کر سکتے ہیں. پھر میسیجنگ دیکھیے انہوں نے کیسی کی کہ
तुम्हें हमारी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं था। तुमने बहुत सौ को ईजी लेने की ठान रखी है। तुमने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए हमें बहुत ही ईजी लिया। तुम समझे कि हम सिर्फ बसें अगवा करते रहेंगे, हम इक्का दुक्का वारदातें करते रहेंगे। हमने इतनी बड़ी वारदात तुम्हारी नाक तले कर ली, तुम्हें पता भी नहीं चलने दिया, और हमने ग्लोबल नॉइज़ क्रिएट कर दी है। पूरी दुनिया ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे इसे चला रही है। लोग पूछते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं? भाई ये फ्री बलूचिस्तान एक मूवमेंट है वहाँ पे। ये BLA बेचारी बड़ी मेहनत कर रही है, बड़े जुल्म सह रही है, और ये उसका किया धरा है। लोगों को तो मौका चाहिए बोलने का, मौका फराहम कर दिया गया। उनकी महारत ने कम और हमारी नालायकी ने ज़्यादा। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन अब तो इट्स ऑलरेडी टू लेट। जो डैमेज होना था वो तो हो गया। एंड पे मैं इस इलाके के एक आदमी की बात दोहराऊंगा, उसने भी यही कुछ कहा है। फिर इस वाक़े ने हमारी बेपनाह कमज़ोरी, एक होती थोड़ी बहुत कमज़ोरी, एक होती शदीद कमज़ोरी, एक्सपोज कर दी। एक शख्स खड़ा होता है, लड़खड़ाता है, सहारा लेता है, फिर लड़खड़ाता है और चल पड़ता है। एक शख्स है जो खड़ा ही नहीं हो सकता। कल की वारदात ने उस इलाके में हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन को तकरीबन इस तरह का पोर्ट्रे किया है। वेस्टर्न साइड पे वारदात करके ईस्टर्न साइड को मैसेज दिया गया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि हम जब चाहें लाइफ लाइन काट के रख देंगे। हम ऐसा बंदोबस्त करने की कुदरत रखते हैं कि कोयटा में बैठी पूरी की पूरी कोर तितर बितर हो जाएगी, ईस्टर्न बॉर्डर पे नहीं पहुंच सकेगी। इसलिए जब चाहो इजी लो, दे आर सिटिंग डक्स। बड़े अफसोस और शर्म का मकाम है कि तकदीर ने हमें कहाँ ला के खड़ा कर दिया। हम सिटिंग डक्स मशहूर हो रहे हैं। हम बहुत तगड़े हुआ करते थे, इम्प्रेग्नेबल, इनसरमाउंटेबल, अनकॉन्करेबल कला होता था हमारा। और अब देखें हम सचमुच रांदा दरगाह बने हुए। दुनिया तो हैरान परेशान है इस बात पे। पाकिस्तानी भी सोच रहे हैं कि भाई हमारी हुकूमत किधर है, बल्कि हमारी हुकूमतें किधर हैं, हमारी फेडरल गवर्नमेंट किधर है जिसको कख पता नहीं है, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट किधर है जो इंतहाई थर्ड क्लास, नाकारा और अय्याश हुकूमत के तौर पे मशहूर है, जिसको अपने लल्ले तललों और अय्याशियों से फुर्सत ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट है तो वो PTI के पीछे पड़ी हुई है, ये है तो वो आदल बाज़ई उसके घर छापे मार रही है उस वक्त। कौन लोग हो तुम, कौन हो? और बेशर्मी का आलम यह है कि तुमसे पूछा जाए कि ये क्यों हुआ है तो तुम या तो खिसियानी हंसी हंसते हो कि जी साढ़े ते पल्ले ही कुछ नहीं, और तुम्हारे वालिद साहब के पल्ले हैं, और किसके पल्ले है? फिर तुम बैठे क्यों हो इस कुर्सी पे? बेशर्मी की इंतहा है कि तुम उसकी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं कर रहे हो कि जी हमारी नाअहली है, नालायकी है, और सिर्फ चुप करके जी ये सिक्योरिटी वालों की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। यानी अगर सारा कुछ सिक्योरिटी वालों ने करना है तो उनके हवाले करो कुंजियां और साइड पे हो जाओ। क्यों मजे ले रहे हो? वो जो हमारे सदर मुमलकत साहब हैं, सो कॉल्ड कमांडर इन चीफ, उन्हें जवाबदेही करनी चाहिए थी, उन्हें एड्रेस करना चाहिए था नेशन को। वो क्या एड्रेस, आपसे असेंबली नहीं एड्रेस हो सकी, नेशन को आपने क्या एड्रेस करना? और प्राइम मिनिस्टर, तौबा तौबा का मकाम है और कुछ भी नहीं। किस कदर खुश होंगे, शादियाने बजा रहे होंगे आज BLA वाले, ना सिर्फ वो बल्कि उनके हैंडलर्स, कि देखा तुम्हें कहते ना थे कि कुछ भी नहीं होगा, इनसे हैंडल ही नहीं होगा। और किसी गलत फहमी का शिकार हमें नहीं रहना चाहिए कि दिस विल स्टॉप हेयर। अव्वल तो बजाते खुद ये वाक़या, इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड सो सून। मुझे फिक्र इस बात की है कि जिन्हें वो साथ ले गए हैं अपने, उनके साथ क्या सुलूक करते हैं, उनके अगेंस्ट हमसे क्या मांगते हैं, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। वैसे एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर ईस्टर्न बॉर्डर कल को किसी तरह हॉट हो जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर, यहाँ पर मामलात शुरू हो जाते हैं, कोई थोड़ी सी जुम्बिश भी होती है, हमें तो अलर्ट रहना है ना, हमें तो हरदम तैयार रहना है। कोयटा मूव करके यहाँ कैसे पहुँचेगा? सिवाय ट्रेन के तरसील का और कोई तरीका नहीं है। ट्रकों पे, बसों पे
इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं होती। इंटरनेशनल मीडिया हमारा ठट्ठा कैसे कर रहा है, जुगतें लगा रहा है हमारे ऊपर। जनरल बख्शी साहब हमें मशवरे दे रहे हैं कि अकल के अंधो ये करो, वरना जो बेचारे बच गए हैं उनसे भी हाथ धो बैठोगे। ये हेलीकॉप्टर दिखाने से, जहाज दिखाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अक्लो खिरद का इस्तेमाल करना पड़ता है, स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड है जो कि तुम में नहीं है। ये जनरल बख्शी कह रहे हैं। वाह वाह वाह, ये दिन भी हमारी किस्मत में लिखे थे। फिर मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ब्लैकआउट, फायरवॉल, इन चीज़ों ने कितना नुकसान पहुंचाया। आप कम से कम खबर की सप्लाई बंद तो ना करें। आप बंद करेंगे तो क्या पूरी दुनिया खामोश रहेगी? ये 80s में रहना बंद कर दें। जब तक आपके यहाँ से खबरें आनी शुरू हुई, पूरी दुनिया में हमें धो दिया गया था खूब अच्छी तरह। फिर ये जानते हुए भी कि झूठ के पाँव नहीं होते, आप क्यों वो क्रेडिट ले रहे हैं जो आपका नहीं है? कि ये 82 बंदे हमने छुड़वा लिए हैं। उन्होंने आते बयान दिया कि भाई हमें किसने छोड़ा है? हमें उन्होंने खुद छोड़ा कि तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं है, जाओ अपनी औरतें भी ले जाओ। बलोचियों को भी छोड़ा उन्हें, बरावी बोलने वाले, बलोची बोलने वाले, उन्हें छोड़ दिया उन्होंने। पठानों को भी रिटेन रखा। पंजाबियों को तो वैसे वो लंबे हाथों लेते हैं, और फिर जो सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं वो इसके अलावा। फिर एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां वो कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? ये किसकी जिम्मेदारी है? एक बार, 2 बार, 3 बार रोजाना पूछते हैं। जब भी कोई वारदात होती है पूछा जाता है आपसे, बल्कि बताया जाता है आपको कि आप क्या कर रही हैं, किधर मसरूफ हैं। वही वाकई नंबर 1 एजेंसी थी, इसको क्या हो गया? खुदारा ये काम या तो किसी और एजेंसी को तफवीज़ कर दें और ख़ुद उधर लगे रहें जिधर आप हैं, या फिर अपने असल काम की तरफ आए। क्योंकि जिस तरह की वल्नरेबल हमारी पोजीशन है, इसमें आपका रोल बड़ा वाइटल है। आप माजरत करनी शुरू करें उन्हें जो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई या ये काम करवाओ या वो, और यकीन कीजिए दैट थिंग कैन वेट, दिस कैन नॉट। ये है फौरी, इमीडिएट, इस पर आपकी फौरी तवज्जो रिक्वायर्ड है। किसी की क्या मजाल कि वो आपसे ज़्यादा रिसोर्सफुल हो। आपके अपने लोग, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन, आपका अपना नेटवर्क इतना ज़बरदस्त है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वसाइल झोंके जाएं इधर, ह्यूमन भी और लॉजिस्टिक भी। बड़ी अच्छी HR है आपके पास, लेकिन वो सारी की सारी पता नहीं कहाँ लगी हुई है। और आखिरी बात इस हवाले से, अख्तर मैंगल का कल वाला ट्वीट, तौबा तौबा तौबा, वो पढ़ के कलेजा मुंह को आता है। उसे पढ़कर रोने को भी दिल चाहता है और सर धुनने को भी। वो कहता है कि आपको कितनी बार समझाया था, बार बार कहा गया था कि समझ जाओ समझ जाओ। आप अगर उसी वक्त समझ जाते तो ये दिन देखना नसीब ना होते, लेकिन आपने हमारी वार्निंग को कभी संजीदगी से नहीं लिया। आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगी, और आज उसका नतीजा आपके सामने है। आयरॉनिकली आज अगर आप समझ भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती। क्यों? इट्स टू लेट नाउ।